ਹੈਲੋ एवरीवन वेलकम यू ऑल इन योर ओन चैनल लर्न एवरीथिंग। सो ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਇਨ ਦਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਇਹ ਸੋਲਿਡ ਲਿਕੁਇਡ ਗੈਸ ਐਂਡ ਸੋਲਿਡ ਗੈਸ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੱਸ ਦਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਇਹਨੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਆਈਸ ਐਂਡ ਵਾਟਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਲੈ ਲਓ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਇੰਸੂਲੇਟਡ ਥਰਮੋ ਫਲਾਸਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਓ at 273 Kelvin and normal atmospheric pressure ਤੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੋ, ਸਿੰਸ ਦਾ ਫਲਾਸਕ ਇੰਸੂਲੇਟ ਹੈਗੀ ਆ, देयर विल बी नो एक्सचेंज ऑफ हीट। ਜਦੋਂ ਫਲਾਸਕ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਸੂਲੇਟਡ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਣੀ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਐਕਸਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਹੀਟ ਦਾ ਬਿਟਵੀਨ ਇਟਸ ਕੰਟੈਂਟ ਐਂਡ ਦਾ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ। ਜਿਹੜਾ ਥਰਮੋ ਫਲਾਸਕ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਈਸ ਤੇ ਵਾਟਰ ਲੈ ਲਿਆ 273 ਕੈਲਵਿਨ ਤੇ ਐਟਮੋਸਫੇਰਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ, ਇਹ ਹੈਗੀ ਥਰਮੋ ਫਲਾਸਕ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਸੂਲੇਟਡ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਇੰਸੂਲੇਟਡ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਹੀਟ ਦਾ ਐਕਸਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ। We notice that as long as the temperature remain constant, ਜਦੋਂ ਤੱਕ temperature ਹੋਏਗਾ constant, there is no change in the mass of ice and water. Does this mean that there is no change take place in this equilibrium? कि इत्थे कोई ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ observe ਕਰੀਏ, we could observe the individual molecule of ice and water, we would notice that considerable activity is still taking place। ਇੱਕ ਨਾ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਉਹ 'ਚ ਹਜੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਅੰਦਰ ਕਿ ਕੁਛ ਕੁ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਜਿਹੜੇ ਲਿਕੁਇਡ ਵਾਟਰ ਦੇ ਆ ਉਹ ਕਲਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਅਗੇਂਸਟ ਦਾ ਆਈਸ, are adhering on to the ice, and at the same time some molecule of ice goes into water। कि कुछ ਜਿਹੜੇ ਆਈਸ ਤੇ ਵਾਟਰ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਾਟਰ ਦੇ ਕੁਛ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਆਈਸ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ। ਸਿੰਸ देयर इज़ नो चेंज in mass of ice and water, the number of molecule ਮਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਛ ਚੇਂਜ ਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਾਟਰ ਤੋਂ ਆਈਸ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਨੇ ਸੇਮ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਆਈਸ ਟੂ ਵਾਟਰ ਜਾ ਰਹੇ। ਜਿੰਨੇ ਵਾਟਰ ਟੂ ਆਈਸ ਉਨੇ ਹੀ ਆਈਸ ਟੂ ਵਾਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਦਾ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਨ ਅਦਰ ਵਰਡ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਰੇਟ ਆਫ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਫਰੋਮ ਆਈਸ ਟੂ ਵਾਟਰ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਮੈਲਟਿੰਗ, ਹੈ ਨਾ। ਆਈਸ ਮੈਲਟ ਕਰਕੇ ਵਾਟਰ 'ਚ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਜਾਣਗੇ। एंड रेट ऑफ रिवर्स ट्रांसफर ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम वाटर इनटू आइस, वाटर च आइस जाना, आइस मतलब फ्रीजिंग, फ्रीज होना। यानी कि दो प्रोसैस हो रहे हैं। कुछ जो मॉलिक्यूल्स आ आइस टू वाटर जा रहे हैं, दैट मीनस मैल्टिंग, एंड कुछ जोड़े आ उल्टा हो रहा है, वाटर टू आइस जा रहे हैं, दैट मीनस फ्रीज कर रहे हैं। ये दोनों प्रोसैस है इक्वल, दोनों रेट जोड़े इक्वल है। देयरफॉर सिस्टम इनटू देयरफॉर द सिस्टम शो कॉन्सटेंसी इन द कॉन्सनट्रेशन। सो इस करके कॉन्सटेंट रह रहा प्रोसैस एंड टर्म एज इनू बोलते इक्विलिब्रियम स्टेट, यानी इदा की स्टेट जिथे रेट ऑफ मैल्टिंग इक्वल टू रेट ऑफ की हैगा फ्रीजिंग। सो जो पूछा जाएगा पेपर च वो तो यही मेन होएगा कि इक्विलिब्रियम तो इन केस ऑफ सॉलिड तो लिक्विड इक्विलिब्रियम किहड़े रेट बराबर होंगे ने, वो चार ऑप्शन दे देगा। रेट ऑफ मैल्टिंग इक्वल टू रेट ऑफ फ्रीजिंग वाला साडा सही आंसर होएगा। क्लीयर, जो मेन याद रखना, इन्होंने एक मैं एक्सप्लेन कर दिता है। सो ये थोड़ा जहा कुछ होर पा लेने। इट मे बी नोटेड दैट आइस एंड वाटर आर इन इक्विलिब्रियम। ये किसी एक पर्टिकुलर टैंपरेचर ते पर्टिकुलर प्रैशर ते होणगे। जिस टैंपरेचर ते द टैंपरेचर एट विच सॉलिड एंड लिक्विड फेस आर इक्विलिब्रियम, जिस ते इक्विलिब्रियम होणगे, जिस एटमोसफेरिक प्रैशर ते उन्होंने आपां बोलांगे। पहले टैंपरेचर दस्सिया, वो नाल एटमोसफेरिक प्रैशर ते उन्होंने बोलते आपां नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट। क्लीयर, नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट वो वाला पॉइंट है मतलब एक टैंपरेचर आ जिहदे ते सॉलिड तो लिक्विड फेस इक्विलिब्रियम हैगी उस एटमोसफेरिक प्रैशर ते किसी सबसटांस ते। ठीक है, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सबसटांस चेंज ओनली स्लाइटली विद प्रैशर ना थोड़ा स्लाइटली जोड़ा है चेंज होंदा है। नैक्सट है, सो इस मेन पॉइंट उन्हें कट के बाहर रख दिते है कि दस एट इक्विलिब्रियम की कनक्लूड कर दे कि बोथ द प्रोसैस मैल्टिंग मतलब आइस टू वाटर एंड फ्रीजिंग मतलब वाटर टू आइस, ये दोनों साइमल्टेनियसली हो रहे हैं। तो जोड़े बोथ प्रोसैस हैं वो सेम हो रहे हैं, सेम रेट पर। ठीक है, सेम रेट, सो दैट अमाउंट ऑफ सबसटांस जी वो की रह रही है, कॉन्सटेंट रह रही है। क्लीयर, आई होप तुहानूं ये सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम जोड़ा है वो क्लीयर हो गया होगा। नैक्सट है लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम। ठीक है, वेपर जां असीं गैस भी कह सकते हैं ना, वेपर जो बनते हैं। लेट अस कंसीडर इक्विलिब्रियम बिटवीन लिक्विड वाटर एंड इट्स वेपर ड्यूरिंग द एवैपोरेशन ऑफ वाटर इन द क्लोज्ड वैसल। तुसीं ना वाटर नूं एवैपोरेट कर रहे हो क्लोज्ड वैसल, इहनूं उपरों ढक्किया होया है। ठीक है, वैसल क्लोज्ड हैगी, उहदे विच वाटर नूं तुसीं एवैपोरेट बॉयल कर रहे हो। लेट्स से व्हेन लिक्विड वाटर इज़ प्लेसड इन ए क्लोज वैसल एट रूम टैंपरेचर, तो तुसीं क्लोज वैसल च रखिया, इट स्टार्ट इवैपोरेटिंग। एज द प्रोसैस कंटिन्यू मोर एंड मोर वाटर मॉलिक्यूल एस्केप कर रहे हैं, लिक्विड टू वेपर स्टेट जा रहे हैं, एंड प्रैशर हुण वधेगा क्योंकि वेपर बनणगे, वेपर का प्रैशर होएगा, तो इस करके वेपर प्रैशर भी इनक्रीज होएगा। द चेंज ऑफ प्रैशर कैन ईजली बी मेजर्ड विद द हैल्प ऑफ मोनोमीटर। एक मोनोमीटर ना साडे कोल डिवाइस हैगा आ,
ठीक है, ਅਸੀਂ कह सकते हो ਆਪਾਂ कह सकते एक इंस्ट्रूमेंट जो भी बोल सकते ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰ ਲੈਣੇ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਚੇਂਜ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹ ਅਟੈਚ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੈਸਲ ਨੂੰ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵੈਸਲ ਵਾਟਰ ਹੈਗਾ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟ ਤੇ ਇਹ ਮੋਨੋਮੀਟਰ ਰੀਡਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਟਰ ਸਟਾਰਟ ਵੇਪਰ बनने शुरू हो गया, देखो ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇੱਧਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹੀ ਇਹਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਦ ਦੀ ਹੈਲਪ ਆਫ ਮੋਨੋਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੋਟਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ੋ ਫਿਗਰ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨ ਦਾ ਬਿਗਨਿੰਗ ਦ ਮਰਕਰੀ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਦੋਨਾਂ ਲਿੰਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸੇਮ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਇਵੈਪੋਰੇਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਦੂਸਰੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲੈਵਲ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ ਸੇਮ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਇਵੈਪੋਰੇਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਰਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। आफ्टर सम टाइम इट कैन ऑब्जर्व दैट प्रैशर बिकम कॉन्सटेंट, फिर कॉन्सटेंट हो जाता है कि इंडीकेट करता कि हुण बस इवैपोरेशन हो गई है, इस तो बाद हुण इवैपोरेशन नहीं होनी। ईवन तो सम लिक्विड हत्ता भी कुछ ना वाटर प्रेजेंट हैगा जिद्दां इहदे विच देखो कुछ वाटर हजे भी प्रेजेंट हैगा, बट एक कॉन्सटेंट वैल्यू इहने अटेन कर लैनी कि उस तो बाद इहने इनक्रीज करना बंद हो जाना है। दिस मीनस दैट द अमाउंट ऑफ वाटर डज नॉट डिक्रीज एनी फर्दर एंड अमाउंट ऑफ वाटर वेपर डज नॉट इनक्रीज, मतलब वाटर की हुण अमाउंट घटेगी नहीं तो वेपर्स की हुण वधेगी नहीं एनी मोर। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं, बस एक लैवल आएगा उस तक ही होएगा। इन्हें बोलते हुण इक्विलिब्रियम स्टेट आ गई। ठीक है, दिस प्रोसैस मे बी एग्जामिन्ड फ्रॉम द मॉलिक्यूलर पॉइंट ऑफ व्यू एज इवैपोरेशन progresses the number of gas molecules in vapor phase increases, जिद्दां इवैपोरेशन होएगी वेपर फेस मॉलिक्यूल ऑब्वियसली इनक्रीज करनगे। ठीक है, नैक्सट है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ जो मॉलिक्यूल्स इन द वेपर फेस ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ मूव करनगे अवर्ब एट रैंडम इन द लिमिटेड स्पेस एंड ड्यूरिंग देयर रैंडम मूवमेंट कि कुछ ਜਿਹੜੇ मॉलिक्यूल्स है स्ट्राइक करनगे सरफेस ऑफ द लिक्विड एंड गेट कंडेंस हो जाएंगे। कंडेंसेशन मतलब कि वापस वो जोड़े है ने वेपर फेस तो लिक्विड च कन्वर्ट हो जाएंगे। दिस प्रोसैस ऑफ कंडेंसेशन एक्ट इन द ओपोजिट डायरेक्शन, जिदा पहला वेपर लिक्विड तो वेपर बन रहा सी ना ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੈਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਪਸ ਜਦੋਂ ਵੇਪਰ ਤੋਂ ਕੰਡੈਂਸ ਹੋ ਕੇ ਲਿਕੁਇਡ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਡੈਂਸੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਰੇਟ ਆਫ ਕੰਡੈਂਸੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਲੈਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰੇਟ ਆਫ ਵੈਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਪੋਰੇਟ ਹੋਣਗੇ ਵੇਪਰ ਬਣਨਗੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਡੈਂਸ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਬਟ ਐਜ਼ ਵੈਪੋਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੀਡ, ਬਟ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਦਾ ਵੈਪੋਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਹੁੰਦੀ ਆ ਫਿਰ ਕੌਨਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੀ ਵੇਪਰ ਫੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਆ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਇੱਕ ਕਲੋਜ਼ ਵੈਸਲ ਆ, ਇੱਥੇ ਵੇਪਰ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਨਾ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਇੱਥੋਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਡੈਂਸ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਡੈਂਸੇਸ਼ਨ ਰੇਟ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸਲੋ ਹੋਣਾ बट हौली हौली की होना वेपर ज़्यादा बनने लग पने। ठीक है, वेपर उपर काफ़ी सारे बन जाने, फिर उन्होंने की करना कंडेंसेशन होना मतलब कंडेंस होना शुरू हो जाना है। ठीक है, फिर फेस इंक्रीज होने के देर फिर रेट ऑफ कंडेंसेशन जो इंक्रीज करेगा। फाइनली द रेट ऑफ वेपोरेशन एक टाइम पर आता कि इक्वल हो जाता रेट ऑफ कंडेंसेशन के। इस स्टेज पर द सिस्टम शो कॉन्सटेंसी इन इट्स प्रैशर, दस इतने की होंगे। सो इस केस के रेट ऑफ वैपोरेशन के इक्वल हो गया रेट ऑफ कंडेंसेशन, उदों कहते आप इक्विलिब्रियम स्टेट आ गई, इनू बोलते इक्विलिब्रियम। ठीक है, हुण इक्विलिब्रियम की स्टेट आएगी कि लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम की केस द प्रैशर एक्सर्टेड बाय द वेपर इन द इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड एट अ पर्टिकुलर टैंपरेचर, इन बस बोलते इक्विलिब्रियम वेपर प्रैशर या वेपर प्रैशर ऑफ लिक्विड। दिस इज़ कॉन्सटेंट एट ए पर्टिकुलर टैंपरेचर बट वेरी करेगा विद वेरिंग टैंपरेचर, जिद्दां जिद्दां टैंपरेचर तुसीं इनक्रीज करोगे वेपर प्रैशर भी इनक्रीज करेगा। ठीक है, बट अमाउंट तो नहीं डिपेंड है। हाउएवर इट इज़ इंडिपेंडेंट द अमाउंट ऑफ वाटर इन वैसल, ये कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो तुहानूं तां आप पता होएगा कि जिन्नी ज़्यादा कह लो कि टैंपरेचर वधाओगे वेपराइजेशन ज़्यादा होंदी, वेपर ज़्यादा ही बनते हैं, है ना। इट मे बी नोटेड दैट इक्विलिब्रियम कैन नॉट बी अटेन्ड इफ द प्रोसैस कैरिड आउट इन ओपन वैसल। देखो जे तुसीं ओपन वैसल च लोगे, वैसल ओपन रखोगे, उस किद्दां तुसीं ये प्रोसैस अटेन कर पाओगे, क्योंकि सारे वेपर होके तो उड़ जाने, सारे क्लोज वैसल च की आ वापस कंडेंस हो जाते हैं। सो इस करके ओपन वैसल दे विच रिवर्स प्रोसैस जिहड़ा नहीं हुंदा, मतलब कंडेंसेशन ऑफ वेपर बैक टू वाटर जिहड़ी हुंदी नहीं हैगी। सो इस करके ओपन वैसल दे विच इहनूं अचीव नहीं किया जा सकता। तीसरा हैगा साडे कोल सॉलिड गैस इक्विलिब्रियम, यानी सॉलिड तो वेपर डायरैक्ट। तुहानूं सुनिया होना तुसीं सबलीमेट बारे, असीं पंजाब टैट च भी इहदे बारे पढ़दे हैं ना, सबलीमेशन प्रोसैस, जिहदे विच सॉलिड डायरैक्टली किस फॉर्म च जांदा, वेपर फॉर्म गैशियस फॉर्म दे विच जांदा। कुछ क सबलीमेट हुंदे साडे कोल लाइक आयोडीन, नैपथलीन, है कीते होने तुसीं सारे। सो इहदे विच की कीता, वैन वी प्लेस सम सॉलिड आयोडीन इन द क्लोज वैसल, इहनूं वार्म कीता ते आयोडीन सबलीमेट कर जाएगी। सबलीमेट मतलब सॉलिड तो डायरैक्टली वेपर फॉर्म च कन्वर्ट हो जाएगी, लिखा होने डायरैक्टली होगी ना। द वैसल गेट फिल्ड अप विद द वायलेट वेपर बन जाएंगे एंड इंटेंसिटी ऑफ कलर इनक्रीज, मतलब वायलेट वेपर देगी ना सानू, इस करके वायलेट वेपर बनने।
तो इंटेंसिटी ऑफ कलर इनक्रीज़ करेगी विद द टाइम, बट आफ्टर सम टाइम जी इंटेंसिटी वो कॉन्सटेंट होएगी। कॉन्सटेंट मतलब कि बस हुण इन्ने वेपर बनने बन गए, ठीक है। दिस स्टेट है वाली इक्विलिब्रियम स्टेट, इन्हूं इदां रिप्रजेंट किया जा सकता सॉलिड, इधर वो वेपर बन गए। यदि अमोनीयम क्लोराइड है, भी कैंफर, सारे सबलीमेट आ, पढ़े है आप सारे। नैक्सट उन्हें दस्सिया ये सॉलिड इन लिक्विड, जो सॉलिड किसी लिक्विड च हैगा, ठीक है। इदा अनडिजोल्व शुगर हैगी आ, एक पहला तो इन्हें अनसैचुरेटेड सोल्यूशन होंदा। अनसैचुरेटेड सोल्यूशन मतलब कि हजे तक तुसीं उहदे विच शुगर हो जी वो डिजोल्व हो सकती है, बट एक पॉइंट आना सैचुरेशन वाला नहीं, मतलब हुण फरदर तुसीं जिन्नी मर्जी शुगर ऐड करो उन्हें नहीं मतलब उहदे विच डिजोल्व नहीं होना, ठीक है। ये हैगी स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम अनडिजोल्व ते डिजोल्व शुगर दे विच, ठीक है। ये इत्थे दस्सिया होएगा कि एट दिस पॉइंट द सोल्यूशन इज सैट टू बी सैचुरेटेड, मतलब कि इस पॉइंट पर जो उन्हें मतलब हुण होर शुगर ऐड करन ते उन्हें सैचुरेट मतलब कि उन्हें डिजोल्व नहीं करना। वंस द सोल्यूशन बिकम सैचुरेटेड दैन कॉन्सनट्रेशन ऑफ शुगर इन द सोल्यूशन बिकम कॉन्सटेंट, बस हुण कॉन्सटेंट होएगी कि इन्नी शुगर ही रहनी है। दिस इंडिकेट द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम हैज़ बीन रीच्ड बिटवीन द अनडिजोल्व एंड डिजोल्व शुगर। सो शुगर इन सोल्यूशन सॉलिड शुगर। एट दिस स्टेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ शुगर गोज इन टू द सोल्यूशन, जो डिजोल्व होए डिसोल्यूशन प्रोसैस वो कि इक्वल हो गए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जोड़े डिपोजिटिंग बैक मतलब अनडिजोल्व है इन क्रिस्टलाइजेशन प्रोसैस कह दिता। सो एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ शुगर के इक्वल हो गया रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये पूछा जा सकता, तुहानूं यही पूछा जाना जो पूछा गया था कि किहड़ा रेट से किहड़ा बराबर होएगा। यही इंपॉर्टेंट है, तीनों साडे जिहड़े सिलेबस मैंशन सीगे तीनों मैं करवा दिते हैं, इन्हां चंगी तरह कर लेना। वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड कमेंट करके दस दिया करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।